Audio Jungle। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହଲ୍ରେ ଗୁରୁବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମିନାର ଓ ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ପବ୍ଲିସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଚିବ ଓ କମଳ ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଶିବଶକ୍ତି ନାଥ ବକ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦକୁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମତାଳ ଉନ୍ନତିର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ମତାମତରେ ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତଫାତକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସମାଜର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ଅବଧେଶ କୁମାର ବିଷୟଟି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ରଚିତ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ଚିନ୍ତନ ଧାରା ଓ ସମକାଳୀନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉଜାଗର କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ବିପିନ କୁମାର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସାମାଜିକ ଓ ଚିନ୍ତନମୂଳକ ଆଲୋଚନାକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବାର ସମର୍ଥ। ଏହି ଅବସରରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଲୋକ ସରକାର ଓ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଜନନାୟକର ବିଧିବଦ୍ଧ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଡକ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ରଚନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶାଳ ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା। ସେ କହିଥିଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆୟୋଜିତ ସେମିନାରଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲେଜ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ସେମିନାରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପଣ ସେମିନାର ଅଭିଯାନ ଭଳି ଏହି ସଂଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ୱାଗତ କରି ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମନ୍ୱୟ ଶ୍ରୀ କପିଲ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବରିଷ୍ଠ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଶର୍ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଞ୍ଚାଳନ ସ୍ୱୟଂସେବକ ରାଜୀବ लोचन ओझा କରିଥିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିନୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। हम बहुत भावुक हो गए। हमको मुझे विषय की समझ ही नहीं है। मैं इनकी छटपटाहट देखकर भावुक हुआ। मुझे पता नहीं इनकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। तो वो जो है करना चाहिए। एक से एक मुझे जैसे ये लिख रहे हैं संविधान के बारे में कि हम उसको केवल पढ़ते हैं और उसकी आत्मा को जीते भी। हम पढ़ ले सकते हैं लेकिन संविधान को जो जीने का है। लेकिन एक इसमें इनका ये है, मीडिया को भी इन्होंने जरा लिखा है कि भैया आप अगर समाचार देखते हो तो उसमें सत्य की खोज करो। मैंने लिखा है सत्य की खोज करते हैं, मैं कर रही है। और मीडिया प्रश्न करना बंद कर दे तो लोकतंत्र का कौन सा पक्ष सबसे क्षतिग्रस्त होता है, सोशल मीडिया पर। और इस पर मुझे ये कहना है कि हमारे देश में लंबे समय तक इस देश की मीडिया में इस देश की जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी उसको फासिस्ट, उसको फंडामेंटलिस्ट, उसको एंटी मुस्लिम, उसको गवा करके मुझे अपने जीवन में ज्यादा काम उन लोगों के साथ करना पड़ा है और मुझे जूझना पड़ा है। मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ता था और पूरा मीडिया उसको चलाता था। और आपको अगर याद होगा कि 1989-90 से लेके मीडिया पर कॉमनल फोर्सेस कहा जाता था। जो उस समय की डिबेट अपनाएंगे 95-96 तक तो कॉमनल फोर्सेस शब्द आते थे कि जो भी आरएसएस, बीजेपी और इस प्रकार का समर्थक कॉमनल फोर्सेस टेलीविजन पर बैठ के, सरकार का टेलीविजन पर बैठ करके कॉमनल फोर्सेस के से बचने की जरूरत से बोला जाता था और ये पूरी दुनिया में फैलाया जाता था। ये देश अयोध्या के मूवमेंट के लिए खड़ा था और उसको इस ढंग से प्रेजेंट किया गया कि देश भर के जो एकदम ऐसी फोर्सेस है जो हिटलर की तरह फासिस्ट पैदा हो गए हैं, देश में मुसलमानों का कत्लेआम करना चाह रहे हैं, जबरन मस्जिद को छीन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब सवाल यह है कि उस समय जो ये भी एक मीडिया थी। तो कई बार क्या होता है सुनीता मान जी, जैसे मैं कहता हूं कि कई बार माओवादियों से मैं सहमत नहीं होता, लेकिन जो जलभूमि पर कब्जे थे, जल जंगल जमीन पर कब्जे थे, तो उनका एक विद्रोह का भाव था और उन्होंने हथियार। वैसे ही हमारे देश में एक जो अभी 15 साल 20 साल से बहुत सारे ऐसे पत्रकार आए हैं जो संस्थानों में डर के काम करते थे
आप अगर एक बलात्कारी है तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन आरएसएस के है, बीजेपी के है तो आपको क्षमा नहीं करेगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी हमें तो काम करना मुश्किल हो जाएगा, कोई सम्मान नहीं मिल सकता। तो ये भी तो एक मीडिया थी। और आज की मीडिया जो है, और ठीक है उसकी आलोचना सही हो सकती है, लेकिन आज की मीडिया कम से कम कुछ चीजें तो दिखा दे रही है भाई। आज अगर प्रधानमंत्री जाते और ऐसे पूरा त्रिपुंड लगाकर और मंदिर में बैठ के पूजा करते और वो समय होता और वैसे दिखाया जाता तो देश का सेकुलरिज्म खत्म हो जाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी पुस्तक बहुत जानदार है और इसको पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा है कि संवेदना के साथ समझ होनी बहुत आवश्यक है, इसलिए पढ़ते समय समझ होनी आवश्यक है कि जब तक आप पृष्ठभूमि में क्या हुआ, तो एक प्रकार से विद्रोह का भाव था। पहले मैं लिखता था तो उस पर गुस्सा बहुत पैदा होता था कि इनकी धज्जी उड़ा दो, ये सब जो ऐसे कर रहे। एक बार हमलावर भाव से लिखना शुरू कर देते और पूरा का पूरा जो है, जैसे कई शीर्षक तो हमने, एक मेरे लेख शीर्षक बता दो, पाखंड बनाम पाखंड बनाम पाखंड, यही हेडिंग है। हाँ, ऐसे ऐसे हेडिंग से हम लोग लिखते थे और एक युद्ध था, इस देश का एक वैचारिक युद्ध था। इसमें जिन लोगों ने उस युद्ध को लड़ा उन्होंने अपने जीवन में बहुत क्षति उठाई, वो कहीं के नहीं रहते थे, और जिनके लिए लड़ते थे वो खड़ा होने वाले होते हैं, आज नहीं होते हैं। तो वो जो समस्या रही और जूझती रही, इसलिए दोनों पक्ष हमारे सामने है, ये बिल्कुल आना चाहिए। इसलिए आज की मीडिया जो है, कम से कम आज की मीडिया आज कुछ सच्चाई दिखाती है। आज की मीडिया तो विरोधियों को भी बुला के पूछती है कि आप ही अपना मत रखिए, वो झूठ बोलते रहते हैं फिर भी मौका मिलता है। लेकिन एक समय था कि ये इसके लिए हमारे देश में स्थिति ही नहीं थी। तो ये सारी स्थितियां रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो चिंतन है उसको सरल शब्दों में ये लोग बोलते हैं, मैं उसको माना अपने जीवन में कि पूरी दुनिया और भारत की स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध ये आधुनिक युग का सबसे बड़ा विद्रोह का शंखनाद था। इससे बड़े विद्रोह का कोई शंखनाद दुनिया में हुआ ही नहीं। कि जहां उस समय आप सोचिए ना, जहां एक तरफ कम्युनिज्म का बोला वाला है, दूसरी ओर पूंजीवाद का बोला वाला है, डेमोक्रेसी वही है जो पश्चिम अपना रहा है, भारत में एक नए किस्म का समाजवाद है, उसमें इन तीनों के परे जाकर के एक ऐसा विचार देना जो दुनिया को रास्ता दिखा सकती है, एकात्म मानव दर्शन। एकात्म मानववाद नाम में पढ़ा, बाद में पढ़ा, पहले इसको एकात्म मानव दर्शन होता है। तो वो जो एक भाव था विद्रोह का, इसके कारण आप सोचिए ना, 52 वर्ष की आयु में और दीनदयाल जी का देहांत हो गया, बहुत विकट परिस्थिति में। वो आज भी पता है 52 वर्ष की आयु में वो चले गए, क्योंकि पार्टी तो बन गई है भाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आए, पार्टी बनाओ, ये तो कांग्रेस वगैरह संस्कृति खत्म करे, लेकिन पार्टी बने तो इसकी विचारधारा क्या हो, क्योंकि समाज का आकर्षण कहाँ है, कम्युनिज्म की ओर है, सोशलिज्म की ओर है। कुछ लोग जो है डेमोक्रेसी के नाम पर वहां जा रही है, तो भारत है नहीं। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा विद्रोह था। इसको उस रूप में देखने की, एक एक शब्द इसमें जो है उन्होंने, जैसे भाषा के स्तर पर, मतलब भाषा जिसकी कमजोर हो गई उसकी संस्कृति भी जो है, क्या है पंक्ति, जो अगर भाषा कमजोर हो गई, हाँ, तो संस्कृति भी कमजोर, क्या संस्कृति मरणासन हो जाती है मातृभाषा के प्रति। आप समझिए, जहां अंग्रेजी का बोलबाला हो रहा है, पूरा विरोध है, मतलब हिंदी के विरोध का भाव पैदा हो रहा है। उस समय पार्टी बनानी है, चुनाव लड़ना है, उस समय साहस के साथ ये विषय रखना ये आसान नहीं होता है। आज भी लोग नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जब आपका की समझ गहरी होती है, आपका चिंतन होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान की प्रणाली क्या रही है, हमारे यहाँ ज्ञान कोई किताब से नहीं मिलता था। ये ध्यान, आदमी ध्यान लगा के देख लिया कि मंगल का रंग क्या है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, और आज भी तो नहीं। तो उस प्रकार से दीनदयाल जी वगैरह उस श्रेणी के थे कि उनके अंदर से जो है वो दिव्यता से वो विचार प्रकट होता था। लेकिन इन्होंने उस विचार को बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जैसे दीनदयाल जी में प्रवेश करके, जैसे सदन में जो चरित्र देख रहा है वो उस समय में इनकी क्या प्रासंगिकता है, भैया ने अभी अवधेश भैया ने बहुत अच्छे से उसको रखा है। और उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरी दुनिया में जब पूरा विश्व चुनौतियों से जूझ रहा था हर प्रकार की, जहां एक तरफ साम्यवाद और एक तरफ पूंजीवाद, उसमें नए तरीके से जो दर्शन दिया है उन्होंने, और सिर्फ दिया नहीं, उसका आपको उदाहरण आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जितने भी कार्यकर्ता आपको दिखाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसी पार्टी है जहां पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से लोगों का परिचय नहीं होता है, फिर भी वो
पूर्ण रूप से न्यौछावर रहते हैं, इसलिए आज इतनी बड़ी पार्टी हो पाई। और उसका वो ऐसा कार्यकर्ता गढ़ने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो तैयार किए गए जो प्रचारक लोग जो हैं, जो पार्टी में आकर के पार्टी को जो दिशा दिए हैं, उस कारण से आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो पाई है। नहीं तो इनके दर्शन को अगर नहीं अपनाती, ऐसे प्रेरक लोग नहीं हम लोगों को मिलते, तो शायद इतनी दूर तक हमें या तो समर्थन नहीं मिलता या जा भी नहीं पाते। जैसे बहुत लोग आए, धराशायी हो गए। तो उन्होंने जिस तरीके से कार्यकर्ता का स्वरूप प्रदर्शित किया है, जब आप एकात्म मानववाद पढ़ेंगे, या उनकी जो अंत्योदय की भी जो अवधारणा है, जिसको अभी सरकार अपनी बहुत सारी नीतियों में लागू कर रही है, तो उसको भी जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें दूसरों के लिए जीने का ये जो प्रेरणा है वो मिलता है। और इसलिए पढ़ने पर ही पता चलेगा कि क्या उन्होंने वाकई में कहा है। इसी संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विपिन कुमार जी। डॉक्टर विपिन कुमार जी महासचिव हैं विश्व हिंदी परिषद के। मैं आपका परिचय करके आपको बुलाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप बहुत ही एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारक के रूप में, स्तंभकार के रूप में आप प्रख्यात हैं, तथा आपने वित्त मंत्रालय के हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। आप हिंदी भाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति के संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आप विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं और विभिन्न राष्ट्रीय अखबारों में ओपिनियन मेकर के रूप में समसामयिक विषयों पर आपका नियमित संपादकीय देखने को मिलता है। संयोजक के रूप में आपने देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों का सफल संचालन किया है तथा 11वें 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में बतौर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने मॉरिशस और फिजी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त आपने थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया में आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन है उसमें देश का प्रतिनिधित्व किया है। शिक्षाविद और प्रशिक्षक के रूप में आपने सरकारी अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय प्रभागियों हेतु कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का डिजाइन किया है और उसका संचालन किया है। आपके भारतीय ज्ञान प्रणाली शासन, शिक्षा और सतत विकास में आप की गहरी रुचि है और इस पे आप निरंतर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। विभिन्न मंत्रालयों और कॉर्पोरेट संस्थाओं में नियमित रूप से अतिथि के रूप में भी आप लोगों का मार्गदर्शन करते आए हैं। आपसे मैं हार्दिक निवेदन करता हूं कि पोडियम पर आए और अपना विचार रखें। मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के सूत्रधार, लोकप्रिय लेखिका डॉक्टर सुनीति मुंडा जी, श्रीमान श्री शक्ति बख्शी जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री अवधेश जी, श्रीमान माधवेंद्र जी, सभा कक्ष में मौजूद विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री डीपी मिश्र जी, विश्व हिंदी परिषद के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री श्रीमती अभिलाषा मिश्रा जी, मुकुल पांडे जी, राजाराम जी, तो उपस्थित देवी सज्जनों, आज बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि जिस तरीके से लेखिका ने दो पुस्तक, एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे और दूसरा लोक सरोकार पे, दोनों पुस्तक को मैं देख रहा हूं तो ये दोनों दो नहीं लिखा है, दोनों एक है, दोनों में एक ही भाव है और दोनों को समग्रता से देखने की जरूरत है। इतने अच्छे पुस्तक के लिए
इतना बढ़िया विषय के चयन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। और उससे भी ज़्यादा आप बधाई के पात्र हैं कि आपने अपने लेखन के लिए हिंदी भाषा को चुना। इसके लिए विश्व हिंदी परिषद की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि भाषा का महत्व केवल संवाद तक सीमित नहीं है, यह हमारे संस्कृति का संवाहक भी है। और इससे भी बढ़ करके जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचते हैं तो इसका महत्व बढ़ जाता है। जो भाषा जितनी ज्यादा मजबूत होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वह देश उतना ही मजबूत होगा। चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, हर स्तर पे देश मजबूत होता है। तो आपने केवल अपने भाव ही नहीं व्यक्त किए, आपने हिंदी भाषा को भी इसमें आगे बढ़ाया है। डॉक्टर स्मृति मुंडा जी से मेरी पहली मुलाकात उड़ीसा के राजभवन में हुआ, जब विश्व हिंदी परिषद का क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन। आज मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री अवधेश कुमार जी, हमारे पुराने वरिष्ठ भी रहे हैं और मित्र भी रहे हैं, और साथ में मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार जी, आदरणीय श्री माधवेंद्र सिंह जी, जिनका उद्बोधन अभी तुरंत हम लोगों ने सुना है। आज इन दोनों पुस्तकों के प्रकाशक आदरणीय श्री कपिल भारद्वाज जी, जो शिल्पायन प्रकाशन की ओर से आज उसके प्रकाशक हैं, तथा इन दोनों पुस्तकों की लेखिका आदरणीय डॉक्टर सुनीति मुंडा जी अभी जो मंच पर हैं, और इस सभागार में उपस्थित आप सभी हमारे मित्रगण। यह एक बहुत ही सुखद अवसर है कि आज दो पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। और जैसा कि पहले ही अपने पूर्व वक्ताओं के उद्बोधन में यह विषय आया है कि ये दोनों पुस्तकें कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही दिन, एक ही अवसर पर ये दो पुस्तकों के प्रकाशन और इसके लोकार्पण के लिए, विमोचन के लिए मैं सबसे पहले जो इन पुस्तकों की लेखिका हैं आदरणीय डॉक्टर सुनीति मुंडा जी, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको हार्दिक बधाई देता हूं। साथ में ही अपने शिल्पायन प्रकाश। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण तथा इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी विद्वज्जन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार उस समय आया था जब भारत में दो विचार विशेष रूप से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था और लगभग स्थापित कर ले गए थे लोग। पहला विचार क्या था? पहले विचार को लेकर आए अंग्रेज, जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी भाषा के प्रचार प्रसार का प्रयत्न किया, अपनी भाषा की नियमावली बनाई अर्थात व्याकरण बनाई, सब भाषाओं की होती है और सभी भाषाविद उसका पालन भी करते हैं। अंग्रेजों ने भी अपनी भाषा के अनुवाद के नियम बनाए और विश्व भर में पालन किया। उन नियमों में से एक नियम था कि किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का अनुवाद नहीं किया जाएगा, अर्थात प्रॉपर नाउन का ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा। जैसे किसी का नाम सूर्य प्रकाश है तो इंग्लिश में भी सूर्य प्रकाश रहेगा, हिंदी में भी सूर्य प्रकाश ही रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने पूरे विश्व की यात्रा करते करते भारत आकर अपने इस नियम का उल्लंघन कर दिया और हम सब भारतवासी उनकी स्मार्ट लैंग्वेज के चक्कर में ये पिछड़ा है ना,
इसके मन में जो है मतलब एक विरोध का भाव। प्रश्न करना एक स्वस्थ परंपरा भी है। ये नहीं है कि हम प्रश्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं आपका विरोध कर रहा हूं। तो डॉक्टर सुनीति मुंड जी ने जो लिखा है ये इनके उन्नत सोच को प्रदर्शित करता है।